So today we are going to solve questions on work, power, energy and collision. Collision पे बहुत कम questions आते हैं, तो मैंने बहुत कम questions इसमें लिए हैं. Let's start with first question. A body initially at rest is sliding along a frictionless track from a height h. Just completes a vertical circle of diameter AB equal to D. The height h is equal to. The question is very interesting. You have, let's say, something like this, और नीचे एक सर्कुलर ट्रैक है. तो जो बॉडी है, दैट बॉल, लेट्स से, वो जो बॉल नीचे आएगा, सो वी हैव अ बॉल ओवर हियर, और जब नीचे आएगा तो बाद में वो सर्कुलर ट्रैक उसमें कंप्लीट करना चाहिए ऑफ डायमीटर डी. तो जो सर्कुलर ट्रैक है, इसका डायमीटर जो है ये डी है. फॉर दिस टू हैपन, व्हाट शुड बी द हाइट एच? कितनी हाइट ये होनी चाहिए? सो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. ओके, सो इजी है. एज यू नो, मैं काम करता हूँ, मैं इसको पॉइंट, सम पॉइंट सी बोल देता हूँ. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. ऑब्वियसली एट पॉइंट सी only energy is potential energy. So total energy at point C is potential energy, which is given by mgh. Correct? As you already know this. Okay, then total energy at point A is only kinetic energy, क्योंकि potential energy तो होगा नहीं वहां पे. Okay, so at point A, total energy is just kinetic energy. क्योंकि हाइट जीरो होना मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होना, तो दैट इज हाफ mva स्क्वायर, लेट अस से. ओके, तो आप पहले बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू ऑलरेडी नो, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, total energy at point C is equal to total energy at point A. At C it was only mgh, and here it is mva square, only kinetic energy. करेक्ट? तो C पे और A पे एनर्जी फाइंड कर ली, दोनों को इक्वेट कर दिया, कैंसिल इट. तो यहां से आपको मिलेगा va स्क्वायर इक्वल टू 2gh. गुड. नाउ इफ यू रिमेंबर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे लोवेस्ट पॉइंट पे एनर्जी होता है अंडर रूट ऑफ 5rg. ओके, कम से कम इतना velocity होना चाहिए. This should be the velocity, not energy, but this should be the velocity at the lowest point, so that the particle can perform circular motion. कम से कम इतना velocity होना चाहिए, right? But let's say question number 1. But for the body to perform circular motion, velocity at A should be equal to under root of 5rg. Okay, so from 1 and 2, you will have, अभी va सिर्फ यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, it is 5rg equal to 2gh. cancel. So you have h equal to 5 by 2r, correct? But radius is diameter by 2, so 5 by 2 diameter by 2 मतलब 5 by 4 into d. ऑप्शन नंबर डी. सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एनर्जीज को इक्वेट करना है, ए पॉइंट पे स्पीड निकालना है, फिर बोलना है कि अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट होना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यू शुड हैव velocity as under root of 5rg at the lowest point. That's it. Done. Next question. Consider a drop of rain water having mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer
It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take G constant with a value of 10 meter per second square. The work done by gravitational force and the resistive force of air is. तो क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास एक रेन ड्रॉप है जिसका मास 1 ग्राम है. इट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर. इट हिट्स द ग्राउंड. सो the raindrop basically is falling from height of 1 kilometer. roughly ये 1 kilometer का height है, right? So this height h is 1 kilometer. So when it hits the ground, okay, its velocity v is 50 meter per second. ऐसा बोला है. G की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है. आपको पूछा है what is work done by the gravitational force and resistive force of air. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? You already know, आपको पता ही है, work done by gravitational force, work done by gravitational force is mgh. हमने ये कल भी देखा था, मतलब लास्ट सेशन में देखा था. इट इज mgh. m इंटू जी इंटू एच. m कितना? 1 ग्राम, मतलब 10⁻³ किलोग्राम. g कितना? तो 10. और हाइट दिया है आपको 1 किलोमीटर, मतलब 10⁻³ 1 किलोमीटर इज 10⁻³ मीटर. कैंसल कैंसल, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 जूल, राइट? तो जब वर्क डन बाय ग्रेविटी 10 जूल आ ही गया है, तो दूसरा मैं कैलकुलेट क्यों करूं? तो ऑप्शन नंबर सी है. तो वी विल सेव आवर टाइम ओवर हियर. ओके, राइट? इन एनी केस अगर दो ऑप्शन होते 10 जूल के, फिर क्या करते? फिर आप ऐसा करते, आपको पता है टोटल वर्क डन. सो टोटल वर्क डन विल बी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्लस रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, राइट? सो क्या हो रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है. एक ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है, करेक्ट? वो फॉल हो रहा है, जब वो अर्थ पे पहुंचेगा तो उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा. तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यू कैन से टोटल वर्क डन is equal to total work done by gravitational force and resistive forces. Okay, तो लिख देता हूँ total work done by gravitational force and resistive force, air resistance का force मतलब, is equal to change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे तो भी चलेगा, बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है. ठीक है, तो एनीवे क्योंकि स्पीड दिया है इसलिए हम नॉर्मली वी टॉक इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि चेंज है. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10 प्लस रेजिस्टेंस का निकालना है हाफ m. v आपको दिया हुआ है 50 और m भी आपको दिया हुआ है 1 ग्राम. 1 ग्राम इज 10⁻³ किलोग्राम. v है 50 का स्क्वायर. सो यू हैव 50 स्क्वायर इज 2500 बाय द वे. तो कर लेंगे इसको सॉल्व. सो यू विल हैव wr as this is 2500 का स्क्वायर. Okay, 2500 by 10⁻³. So 10⁻³ into 25 into 2500 by 2 minus 10. 1 this is 12.5 Calculations आप करोगे, obviously you are good enough to do calculations. तो ये सब करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद, इसको ये जो टर्म है इसको मैं बता देता हूँ. 10⁻³ into 25 into 10⁻+2 by 2 1 12.5 ये 10⁻³ ये 10⁻+2 so 10⁻1 12.5 into 10⁻1 is 1.25 minus 10 it is minus 8.75 जूल. क्योंकि रेजिस्टेंस तो अपोज ही करता है ना,
तो नेगेटिव आना भी चाहिए था। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस नेगेटिव, बिकॉज वर्क डन नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि रेजिस्टिव फोर्सेस दे अपोज। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। तो सिंपल क्वेश्चन था, इट इज -8.75 ऑप्शन नंबर सी। राइट, वैसे सेकंड पार्ट सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं थी, बट इन एनी केस इट्स ओके इफ यू सॉल्व दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical balls A and B having velocities of 0.5 meter per second and -3 meter per second. आपके पास दो identical balls है A and B. You have velocities of 0.5 of ball A and -0.3 of ball B respectively. Collide elastically in one dimension. One dimensional collision है and they collide elastically. इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है आपको ये बताना चाहिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। देखो यहाँ पे एक जनरल कंफ्यूजन हमेशा रहता है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे भी आपको लगने वाला है ये। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इन 1D, मान लेते हैं आई हैव अ बॉल ए, आई हैव अ बॉल बी, सो लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल इज UA and that of B is UB. After collision they may change velocities, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज हाफ m a UA स्क्वायर प्लस हाफ m b UB स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m a BA स्क्वायर प्लस हाफ m b BB स्क्वायर। मतलब दोनों जो कोलाइडिंग बॉडीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों का स्पीड सेम रहेगा, वेलोसिटी सेम रहेगा, वेलोसिटी चेंज होता है, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होता है, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। तो ये पता होना चाहिए। तो इन एनी केस आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी 0.5 दिया है और बी बॉडी का -0.3 दिया है। मतलब ए बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड बी इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। इलास्टिक कोलिजन है वन डायमेंशन में। द वेलोसिटीज ऑफ बी एंड ए आफ्टर कोलिजन रिस्पेक्टिवली विल बी। सो आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द वेलोसिटीज, ऐसे आपको पूछा है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल masses of the ball are same, क्योंकि आइडेंटिकल बोला है, राइट। तो आइडेंटिकल है और मतलब मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन है, तो इन दिस केस सिर्फ वेलोसिटीज एक्सचेंज इंटरचेंज हो जाते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज ओनली इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो ए का वेलोसिटी बी को गया, बी का वेलोसिटी ए को गया। अगर आपको ये याद नहीं है तो मेथड भी है सॉल्व करने का, लेकिन मैं अभी फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूँ एग्जैक्ट। तो आई विल जस्ट टेल यू, आपका 11 का टेक्स्ट बुक, उसमें आपको फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन का इक्वेशन दिया है, बड़ा इक्वेशन है। वो कैसे याद रखते हैं वो ट्रिक मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया है, इसलिए थ्योरी लेक्चर देखना चाहिए था। एनीवेज, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, वो फॉर्मूला में भी अगर आप वैल्यूज डालोगे तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा, बट इन एनी केस हमें ट्रिक्स चाहिए। ट्रिक फर्स्ट, if balls are identical, मतलब मास सेम है, if balls are identical. Second, and collision is elastic, इस केस में final velocity of A is equal to initial of B and final velocity of B is equal to initial of A. क्वेश्चन में क्या पूछा, अच्छे से पढ़ना। वेलोसिटीज ऑफ बी, पहले बी बाद में ए, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी, राइट। अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप ऑप्शन नंबर सी टिक कर दोगे। देते वक्त, इंफॉर्मेशन देते वक्त पहले ए का दिया है फिर बी का दिया है, पूछते वक्त पहले बी का पूछा है फिर ए का पूछा है। तो वी ए इज यू बी, right? UB is -0.3 and VB is UA 0.5, लेकिन पूछते वक्त पहले किसका पूछा है, बी बॉल का, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 4. A particle moves from a point minus 2 I cap plus 5 j cap to a point 4 j cap plus 3 k cap, where when a force of 4 I cap plus 3 j cap Newton is applied, how much work has to be done by the force? तो ऐसा है, आपको वर्क डन पूछा है, आपको पता है वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, आपके पास फाइनल पोजीशन वेक्टर दिया है 4 j कैप प्लस 3 k कैप, माइनस इनिशियल भी दिया है माइनस 2 I कैप प्लस 5 j कैप, आपको साथ में फोर्स भी दिया है, तो फोर्स मैं बाद में लिख दूंगा यहाँ पे. सो दिस इज फोर्स वेक्टर इज 4 I कैप प्लस 3 j कैप डॉट 4 j कैप plus 3 k cap minus of minus is plus 2 and minus 5 j cap. तो ये आपको मिल जाएगा वर्क डन एज 4i plus 3j डॉट, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2i minus j plus 3k cap. This is what you will have. और आपको पता है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो, whenever you take dot product, only terms with I cap dot I cap and J cap dot J cap survives. So work done W is equal to 4 I cap dot 2 I cap plus 3 J cap minus J cap with a dot in between. K cap तो रहेगा नहीं. I cap dot J cap 0, I cap dot K cap 0, J cap dot I cap 0, बाकी सारे टर्म 0 0 0. तो you know what I'm saying. यह आ जाएगा 8 I cap dot I cap is 1 minus 3 J cap dot J cap, तो 5 जूल ऑफ वर्क इज डन. तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज वर्क डन, इतना ही पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. A particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant power k watts. If the particle starts from rest, the force on the particle at time t is. हमारे पास एक पार्टिकल है, मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है, ओके, इट इज ड्रिवन बाय अ मशीन, मतलब इसको मोशन में रखना है तो मशीन का यूज कर रहे हैं जो एक कांस्टेंट पावर के सप्लाई करता है, के वैट्स. If the particle starts from rest, the force on the particle at time t is. Particle जो है वो rest से start कर रहा है सबसे पहले. Do you know what is power? Of course K दिया है, but by definition what is power? Power is work done per unit time. Correct? So this is something you know, you should know. So therefore dW is equal to k dt. Therefore if I integrate on both sides, so integration dW is integration k dt, which is k integration dt. Okay, तो आपको मिल जाएगा integration dW is W and k dt is t. ये मिल गया आपको वर्क डन का सॉल्यूशन. करेक्ट? राइट. इनकरेक्ट. क्यों इनकरेक्ट? हमें पूछा है फोर्स, हमने निकाला वर्क डन, और वो भी हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिमिट्स नहीं डाले, तो लिमिट्स डाल दो. तो टोटल वर्क डन आपको पता है कैसे निकालते हो. टोटल वर्क डन फ्रॉम टाइम 0 to t, 0 to t, 0 to t. You have to put limits always. So total work done is kt. अभी सही है, पहले भी सही था लेकिन मैथमेटिकली सही नहीं था. So I want you to be mathematically correct. So work done is kt. So it is mathematically correct now if you are putting limits 0 से टाइम t तक, क्योंकि उन्होंने बोला है टाइम t दिया हुआ है, इसलिए we are supposed to find out force. How do you find out force? What is work done, by the way? You already know what is work done, okay, and you also know what is work energy theorem. Work done appears as kinetic energy, बराबर है ना. मशीन है, मशीन इस पार्टिकल जिसका मास m है वो पहले रेस्ट पे था, उसको मोशन में लाने के लिए मशीन ने वर्क किया.
तो वो वर्क कहाँ गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब क्या, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने पहले भी बताया है, दिस इज डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ mu स्क्वायर, इनिशियल तो जीरो ही था। वर्क डन W इज kT फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके, इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस जीरो, ये आ जाएगा आपके पास। What do you want? You want force. What is force? Mass into acceleration. Therefore, you will have 2 kT by m equal to v square. Therefore, you will have v equal to under root of 2 kT by m. ये हो गया velocity. आपको चाहिए acceleration, क्योंकि आपको चाहिए force. You want to have force, okay? So, how do you find out force? Force is mass times acceleration. Acceleration is rate of change of velocity, right? So m dv by dt, ddt of v, what is v? Under root of 2 kT by m. अब ऐसा है कि under root of 2k by m constant, d dt of root of t, क्योंकि constant derivative की बाहर root of t मतलब t raised to half, t raised to half. This is m को अंदर लेके जाते हैं, m स्क्वायर करके लेके जाते हैं, m स्क्वायर 2k by m, इसका डेरिवेटिव हाफ, t रेज टू हाफ माइनस 1, तो एक m गया, तो अंडर रूट ऑफ 2m के हाफ, मतलब ये 2 यहाँ पे, t रेज टू माइनस हाफ। अब ये जो 2 है ये भी हम स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो बन जाएगा 2mk by 2 स्क्वायर, दैट इज 4, मतलब mk by 2। सिंप्लीफाई करने के बाद mk by 2 आएगा रूट के अंदर और t रेज टू माइनस हाफ आएगा रूट के बाहर, ऑप्शन नंबर सी। तो हाउ हैव वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? हमारे पास पावर दिया है, पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब फिर हमने यहाँ से dw इक्वल टू kdt लिख लिया, तो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw 0 to t, dw is basically kdt, तो हमको वर्क डन kt मिल गया, बट वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, u 0 है, गुड। तो हमको मिल गया यहाँ पे v स्क्वायर, यहाँ से मिल गया v, हमको चाहिए फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज dv by dt, तो v का हमने डेरिवेटिव ले लिया और सिंप्लीफाई किया, ऑप्शन नंबर सी इज व्हाट यू गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is what I was talking about, some big equations, but anyways the question is simple. Two particles of masses m1 and m2 move with initial velocities u1 and u2. On collision, one particle gets excited to higher level after absorbing energy epsilon, यहाँ पे misprint है epsilon. If final velocities of particles be v1 and v2, then we must have, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ इक्वेशंस बड़े बड़े दिखते हैं यहाँ पे। हमारे पास दो पार्टिकल है, मास m1 एंड m2, वेलोसिटीज u1 एंड u2, ओके। नाउ ऑब्वियसली लेट अस वर्क आउट व्हाट इज टोटल इनिशियल एनर्जी। तो टोटल इनिशियल एनर्जी इज बिफोर कोलिजन, मतलब टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, करेक्ट। अब एक चीज हमेशा कंफ्यूजन रहता है एक चीज का, कि हम पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लिखते, क्यों लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, कब लिखते हो? पोटेंशियल एनर्जी तब होती है जब वो पार्टिकल मतलब मास अगर किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में हो या फिर चार्ज किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हो। यहाँ पे बोला है क्या, द टू मासेस आर मूविंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एट अ हाइट h। तो हम ऐसे केसेस में हम अज्यूम करते हैं दैट द पार्टिकल्स आर मूविंग, दे आर नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ
any field, मतलब potential energy is zero because potential energy is basically energy due to the location of mass in a field. तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी। अब कोलिजन के बाद आपको ऐसा बोला है कि इन दोनों पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल एक्साइट हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेशन? व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेशन? एक्साइटेशन मतलब एक का एनर्जी, एक का वेलोसिटी बढ़ गया, हाँ, एनर्जी बढ़ गया, ऐसा बोल सकते हो। एनर्जी कहाँ बढ़ा? एब्जॉर्ब करने के बाद। कब बढ़ा? तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उस पार्टिकल का एक्साइटेशन हो गया। सिंपल है। व्हाट इज टोटल फाइनल एनर्जी? इजी है ना। व्हाट इज टोटल फाइनल एनर्जी? टोटल इनिशियल एनर्जी आपके पास था हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। टोटल फाइनल एनर्जी आपके पास आएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस इप्सिलॉन, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? यूजिंग लॉ of conservation of energy. Law of conservation of energy tells you that total initial energy is equal to total final energy. Initial energy is half m1 u1 square. I will not write this because I'm lazy. So I'll just copy this, put it here. Total final energy is this. Copy, put it here, put equal to sign in between. अब ऐसा करो, इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब यहां से let's shift it little bit. ये प्लस ई जो था वो यहाँ पे आके माइनस ई हो जाएगा। That's it. सिर्फ e को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, माइनस ई हो गया। क्या क्या ऐसा हाफ, अब हाफ रहने दो वहाँ पे, doesn't matter. So हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस इप्सिलॉन इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो जितना क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखता है उतना ही क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं है। टू पार्टिकल्स मूविंग, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, इनिशियल एनर्जी half m1 u1 square plus half m2 u2 square. They are colliding. One of the particles is getting excited and absorbing energy epsilon. So final energy is half m1 v1 square plus half m2 v2 square and epsilon, क्योंकि energy absorb हुआ है। Conservation of energy, principle of conservation of energy लगा दो, हो गया solve. Next question. A body of mass 4m is lying in xy plane at rest. It suddenly explodes into 3 pieces. 2 pieces each of mass m move perpendicular to each other with equal speeds v. Very good. The kinetic energy generated due to explosion is. हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m4m है. It was at rest. Okay. In 2 dimensions, right? Now, after explosion, इसके 3 पीस हो गए। अब इसको कहीं भी दिखाओ, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, wherever you want to show it, doesn't matter, you can show it anywhere you want. तो यहाँ दिखा देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। सिर्फ फिर मैं इस केस में इसको एक्सटेंड कर लूंगा, that's it. So I'll just extend this and show something like that. Okay. Now, what is happening is, इसमें से एक पीस यहाँ गया जिसका मास m है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 2 पीसेस का मास m है। एक तीसरा पीस है जिसका मास 2m होगा, फिर क्योंकि 4 में से टोटल इनिशियल मास कितना था? 4m। 4m में से m यहाँ गया विथ वेलोसिटी v, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली बचा हुआ 2m जाएगा। वेलोसिटी को v डैश बोल देते हैं हम लोग, कॉल इट एज v डैश, राइट।
हमको पूछा है टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन। यस, क्या करेंगे? सबसे पहले यू हैव टू अप्लाई conservation of momentum. So initial momentum is equal to final momentum. ठीक? तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? You will say initial momentum is zero of course क्योंकि body was at rest. अब एक जो पीस है, पीस नंबर 1 वो गया x डायरेक्शन में, पीस नंबर 2 गया y डायरेक्शन में, पीस नंबर 3 is somewhere in between. Okay, so क्या करेंगे अब? देखो ये थोड़ा लेंदी मेथड से बता रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्टकट से भी हो ही सकता है बेसिकली। अभी मैं दोनों अप्रोच बताऊंगा। हमने पहले किया है शॉर्टकट, थोड़ा लेंदी भी देख लो, फिर आप कंपेयर कर सकोगे कि क्यू वेक्टर्स कहाँ पे कैसे अप्लाई करने हैं। यू विल अंडरस्टैंड दैट। सो इन एनी केस दिस इज m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार प्लस m3 v3 बार, right? So you will have 0 equal to m1 v1 bar, m1 is m, v1 is v I cap, plus m2 is m, v2 is v j cap, plus m3 is 2m v3 bar. So yeah, so you will have 2m v3 bar equal to mv I cap plus j cap, cancel and cancel obviously with a negative sign over here, of course. Therefore you will have v3 bar equal to minus v by 2 I cap plus j cap. आपको जो थर्ड कंपोनेंट है उसका वेलोसिटी निकालना है मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालोगे? तो यू हैव x कंपोनेंट माइनस v by 2, y कंपोनेंट भी माइनस v by 2, क्योंकि आप इस माइनस v by 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव अंडर रूट ऑफ माइनस v by 2 स्क्वायर प्लस माइनस v by 2 का स्क्वायर, मतलब you will have under root of 2v square by 4 by the way. So this will be v by root 2. Correct? मिल गया? टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा है आपको, तो हाउ टू फाइंड आउट टोटल काइनेटिक एनर्जी? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी इज पहले का प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर। अब ये पहले दो पीसेस का तो सेम ही है, तो फिर 2 टाइम्स ऑफ हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ m3 was 2m और v3 v by root 2 का स्क्वायर, v by root 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाई 2, मतलब 3 by 2 mv स्क्वायर, 3 by 2 mv स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज लेंथी मेथड. I want you to learn how to find out shortcuts. First of all, जब 2-dimensional प्रॉब्लम है, एक मास के 3 पीसेस हो रहे हैं और उसमें से 2 परपेंडिकुलर है, तो तीसरा हमेशा रिजल्टेंट होता है, तीसरा हमेशा डायगोनल के डायरेक्शन में होता है, हमेशा। मतलब P3 ये P1 और P2 का रिजल्टेंट होगा, डायगोनल होगा, तो सीधा सीधा P3 यू विल बी राइटिंग दिस एज अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर ऑलवेज। तो ये सिंपल केस है, क्योंकि फिर आप लिखोगे M3 V3 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर। ओके, सो M3 इज बेसिकली 2m, हमको पता है यहाँ पे 2m है, ये m है, ये m है, तो टोटल वो जो तीसरा पार्ट है वो 2m है, 2m v3। तो ये तो 2 टाइम्स, क्योंकि 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि दोनों का मास और स्पीड सेम है, तो 2mv का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। तो 2mv3 विल बी अंडर रूट 2mv, कैंसिल कैंसिल, v3 इज इक्वल टू v बाय रूट 2। तो डायरेक्टली भी आता है ना, डायरेक्टली आ गया। क्यों वेक्टर्स करना है, फिर टाइम पास नहीं करना, डायरेक्टली करना, हो गया। फिर इसके आगे तो यही स्टेप वापस से है, तो देन देयर इज नो इश्यूज।
So this is how you can solve this particular question. Okay, तो ऐसा आप कर सकते हो, इसके आगे ये करना पड़ेगा. हो गया सॉल्व. This is method number 2 by the way. So you are not using vectors. You are directly saying कि अगर दो pieces perpendicular है तो तीसरा along diagonal है. खत्म. Next question. A particle with total energy E is moving in potential energy region X. Motion of the particle is restricted to the region when. देखो वैसा है. This question basically is from conceptual understanding of bound systems. थोड़ा higher level जा रहा है लेकिन ठीक है. What is bound system? Example. हमारे पास एक बॉक्स है. ये आप जो इंजीनियरिंग करेगा सीखोगे. पार्टिकल इन द बॉक्स. फर्स्ट ये सेकेंड सेमेस्टर में फिजिक्स आएगा, उसमें पार्टिकल इन द बॉक्स का प्रॉब्लम आएगा. आपके पास पार्टिकल है विच इज इन अ बॉक्स विच इज बाउंड. ये पार्टिकल सिर्फ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा सकता है, राइट? या फिर ऑफ कोर्स यू हैव लर्नड ऑसिलेशंस ऑलरेडी. आपने ऑसिलेशन सीखा है ना. क्या होता है ऑसिलेशन में? लीनियर मोशन में क्या होता है? क्या होता है? This particle at the center can maximum go up to point A, right extreme, or point B. Do you remember? Total energy is kinetic plus potential, right? Maximum kinetic energy is at center. At center, maximum kinetic energy. Maximum potential energy is at extreme positions. अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे पता है ऑलरेडी. कैसे पता है? अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के वो जो दो ग्राफ थे, कौन से ग्राफ थे? पोजीशन अगेंस्ट एनर्जी. यहां पे आप प्लॉट करते हो एनर्जी, यहां पे आप प्लॉट करते हो x and minus x. At amplitude, what is amplitude? Maximum displacement from mean position, मतलब minus a and plus a. मैं यहाँ पे बता देता हूँ सिचुएशन आपको वापस से. आपके पास एक पार्टिकल है. This particle can perform oscillatory motion, oscillations. ये उसका mean position, ये उसका right extreme जिसका एम्पलीट्यूड a है, ये उसका लेफ्ट एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड माइनस a है. आपको पता होना चाहिए जब पार्टिकल सेंटर पे है तो ओनली एनर्जी इज काइनेटिक एंड काइनेटिक इज मैक्सिमम. मतलब ये x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है. आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट नाउ क्योंकि हमने पहले किया है ये सच में. और आई विल ड्रॉ अ लाइन हियर. दिस लाइन which I am drawing here, ये जो लाइन है ना, ये मैक्सिमम एनर्जी का लाइन है, टोटल एनर्जी का लाइन है. बेटर टू से ये टोटल एनर्जी का लाइन है. तो अगर आपको याद होगा, आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हो काइनेटिक एनर्जी का, ऐसा ही करते हो. आप बोलते हो सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे 0. क्यों 0? ऑब्वियस है, जब पार्टिकल यहां जाएगा उसको वापिस आना है. वापस आना है मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे उसको स्टॉप होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा. स्टॉप होना मतलब v0, v0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0. करेक्ट? गुड. पोटेंशियल एनर्जी का उल्टा है. पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है, मीन पे 0 होती है. पोटेंशियल एनर्जी का केस उल्टा है. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, राइट? So this is potential energy. What do you notice? Potential energy is less than or equal to E. Option number C. क्यों? क्योंकि ये restricted motion है ना. Any restricted motion, any bound system, particle with total energy E is moving
in a potential energy region X, motion of the particle is restricted to the region when. किसी भी बाउंड सिस्टम के लिए 1D के लिए ऐसा होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन इक्वल टू टोटल एनर्जी हमेशा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड is A by R square minus B by R, where A and B are positive constants and R is distance of particle from the center of the field. Okay. For stable equilibrium, the distance of particle is. ये directly as a rule याद रखो. For इक्विलिब्रियम, स्टेबल की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको आई डोंट रियली नो इफ यू हैव वेंट थ्रू स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन 11th, बट मैंने थ्योरी में करवाया था जब हमने पूरा कोर्स किया था इसका, तो मैंने बताया था व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो मैं बता देता हूँ एक बार और बता देता हूँ. मान लो हमारे पास ऐसा एक स्लोप है, हमारे पास ऐसा एक स्लोप है और हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है. फ्लैट सरफेस. वी हैव अ बॉल एट सेंटर, मतलब यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पे बॉल है. जब मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूं, इफ आई डिस्प्लेस दिस बॉल स्लाइटली एंड रिलीज इट, तो क्या होगा, ये अपने इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आने की कोशिश करेगा. इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. दूसरा ये, इसको मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो ये कभी वापस नहीं आएगा, ये जाएगा, इट विल गो अवे. इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उठा के कहीं भी रखो वो वहीं पे स्टेबल हो जाएगा, मतलब वो वहीं पे सेटल हो जाएगा. उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो इन एनी इक्विलिब्रियम, एनी, मैंने अभी तक स्टेबल, न्यूट्रल और अनस्टेबल की बात नहीं की. इन एनी इक्विलिब्रियम, फॉर एनी इक्विलिब्रियम, you always have first derivative of potential energy 0. For any equilibrium, derivative of potential energy with respect to distance is 0. तो इसका डेरिवेटिव लो, d dr of u is a by r square minus b by r equal to 0. तो इसको इक्वेट करो. सो डेरिवेटिव ऑफ a by r square minus derivative of b by r equal to 0. a कांस्टेंट, 1 by r स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेते हो, r स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे, फिर डेरिवेटिव लोगे, ब्ला ब्ला ब्ला. सो यू ऑलरेडी नो दिस. तो ये आपको पता है कि -1 by r आता है. डेरिवेटिव ऑफ 1 by r स्क्वायर इज -1 by r, ये बताना चाहिए आप. माइनस b, derivative of 1 by r with respect to r is log of r. Yeah, it's log of r, right? It should be log of r. Log of r ही आता है, because I if I'm not wrong, ये log of r आता है. Okay, so this is what you have. अब ये आपके पास आ गया. Now this is first derivative. हमको चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव. क्योंकि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम के लिए था. फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, वैसे क्वेश्चन रॉन्ग है बट आई एम स्टिल टेलिंग यू, ये जो a by r square minus b by r, this is wrongly printed. Anyways, for stable equilibrium, second derivative with respect to distance is greater than 0. So second derivative with respect to distance is greater than 0. This is for stable equilibrium. Okay, all right. तो आपको ये concepts पता होने चाहिए. For equilibrium, first derivative of potential energy is 0. Correct? Right? Good. And for stable equilibrium, second derivative should be greater than 0. Okay. हमें क्या फाइंड करना था? हमें डिस्टेंस फाइंड करना था. राइट? अब गलती कहाँ होती है? एक
या तो क्वेश्चन रॉन्गली प्रिंटेड होगा, बट आई विल, इट्स ओके, इवन इफ इट इज रॉन्गली प्रिंटेड आई विल सॉल्व, नो प्रॉब्लम. ओके, डजंट मैटर रियली, एक हाथ ऑप्शन तो आ ही जाएगा. डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, बी केयरफुल विद डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन आल्सो. तो देख लेते हैं हम लोग कि हमारा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में गड़बड़ हुआ कि नहीं. क्योंकि नॉर्मली दिस थिंग हैपेंस. a ddr of r raised to -2, okay, minus b ddr of r raised to -1 equal to 0. So a derivative of r raised to n is n r raised to n -1. तो हमारा डेरिवेटिव में गलती हुआ. Okay, this is something you have to check. Minus b -1 r raised to -1, मतलब यहाँ पे भी गलती हुआ है हमारे डेरिवेटिव में. So question looks correct. It seems कि हमने डेरिवेटिव में गलती की. Doesn't matter, we have rectified also. इसको सॉल्व कर लेंगे. तो यह आ जाएगा -2a r raised to -3, मतलब नीचे जाके r raised to +3, माइनस माइनस प्लस b r raised to -2, तो ये आ जाएगा आपका नीचे आके r स्क्वायर, मतलब आपको यहाँ से मिल जाएगा. इन शॉर्ट यू विल गेट फ्रॉम हियर दिस इज इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर यू विल गेट 2a by r क्यूब इक्वल टू b by r स्क्वायर. कैंसिल कैंसिल, तो आपको r मिल जाएगा यहाँ से. यू विल गेट r इक्वल टू 2a by b, तो आपको मिल जाएगा r इक्वल टू 2a by b. r मिल गया, यस, करेक्ट, गुड, हो गया, डन, खत्म. ऑप्शन नंबर बी हो गया. अभी ये जो फर्स्ट टेबल इक्विलिब्रियम है, ये एक्स्ट्रा कंडीशन लिख के रखी है मैंने. फर्स्ट टेबल इक्विलिब्रियम यू शुड हैव सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन 0, और वो आएगा भी. So you can take two derivatives and you can just see if it is greater than 0 or not. आता है, वो एक्स्ट्रा वर्क है, जरूरत नहीं है हमको, करना है तो कर सकते हो. इसका पहला डेरिवेटिव लो, इसका सेकंड डेरिवेटिव लो, और देखो वो ग्रेटर देन 0 आएगा. राइट, फर्स्ट टेबल इक्विलिब्रियम. गुड. तो हमको r मिल गया 2a by b, ऑप्शन नंबर बी. मैं वापस समझाता हूँ क्वेश्चन. 3 इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल. मैंने डिफरेंस बताया. तीनों ही इक्विलिब्रियम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज 0, तीनों ही केस में. तो यहाँ से आपको सीधे सीधा r की वैल्यू मिलेगी, मतलब तीनों ही केस में r की ये वैल्यू तो आएगी. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा होता है ना, डिस्टेंस तो पूछा ही है, फिर अगर पूछा होता also specify if the equilibrium is stable, unstable or neutral. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए सेकंड डेरिवेटिव आता है ग्रेटर देन 0, अनस्टेबल के लिए आता है लेस देन 0, और न्यूट्रल के लिए आता है इक्वल टू 0. तो ये एक्स्ट्रा कंडीशंस आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A solid cylinder of mass 3 kg is rolling on a horizontal surface with velocity 4 meter per second. Solid cylinder of mass 3 kg is rolling on horizontal surface with velocity 4 meter per second. Okay, it collides with a horizontal spring of force constant 200 Newton per meter. The maximum compression produced in the spring will be. तो ऐसा है, let's say हमारे पास एक horizontal floor है, इस पे एक solid cylinder है, something like this. Okay, it is rolling on horizontal surface with velocity 4 meter per second. यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को एक प्लेटफॉर्म है. तो जब ये इनिशियल सिचुएशन है, मान लो दिस इज इनिशियल सिचुएशन, सो दिस इज इनिशियल सिचुएशन. फाइनली जब ये कोलाइड होगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा. स्प्रिंग का कंप्रेशन जो है, ओके, तो उन्होंने पूछा है मैक्सिमम कंप्रेशन, राइट? हाउ मच इज मैक्सिमम कंप्रेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन? आई जस्ट
टेल यू, ये है इनिशियल पोजीशन, ये है उसका फाइनल पोजीशन of the spring, of course. So this is compression X, correct? कंप्रेस हो गया ना स्प्रिंग प्लेट, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना? अभी ऐसा है, जब ये सिलेंडर कोलाइड होगा तो सिलेंडर का काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. Okay, so which means loss in kinetic energy of cylinder is equal to gain in potential energy of spring. ऐसा आपको मिलेगा. तो मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब उस रोलिंग सिलेंडर ने अपना पूरा का पूरा एनर्जी दे दिया, पर रोलिंग मोशन है. अगर आपको याद है रोटेशनल मोशन, उसमें रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. मतलब रोलिंग मोशन का टोटल एनर्जी होता है हाफ mv² प्लस हाफ I ω². गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ kx². अभी इसको जब सिंप्लीफाई करते हो, मैं शॉर्टकट मार सकता था लेकिन नहीं किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए. आप जब इसको सिंप्लीफाई करते हो तो I को लिखते हो mk², अगर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ओमेगा इज v/r² इक्वल टू हाफ kx². हाफ mv² कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस k²/r² आ गया इक्वल टू हाफ kx² आ गया. याद रखना ये k रेडियस ऑफ गायरेशन है, ये k स्प्रिंग कांस्टेंट है. तो मैं एक काम करता हूं, मैं स्प्रिंग कांस्टेंट को k डैश बोलता हूं जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, और मैं यहां लिख देता हूं k डैश इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड k is radius of gyration. ये हम नेक्स्ट सेशन में, मतलब कल रोटेशनल डायनामिक्स में बात करने ही वाले हैं इसको. एनीवेज, सॉलिड सिलेंडर मतलब लाइक अ डिस्क, और डिस्क के लिए k²/r² हाफ होता है अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. ये डिटेल नेक्स्ट सेशन में जाएगा. So for a solid cylinder which is a disk, k²/r² is half k dash x². Okay, well मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ. तो मेरे पास ये आ गया 3/2 mv² इक्वल टू k dash x². हमको क्या पूछा है? हमको पूछा है x, मैक्सिमम कंप्रेशन. तो you will write down this as x² is equal to 3mv²/2 k dash. तो x² इक्वल टू 3/2 m, मास कितना दिया है 3 kg, v कितना दिया हुआ है आपको 4 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर 16, k dash कितना है 200 है, फोर्स कांस्टेंट 200. सॉल्व करो इसको, you can simply do this. Okay, so just solve this. 1 जा 8 जा, okay, ये आ जाएगा 400, 250, 125. Of course, x² is 9/25. That is x is 3/5. 3/5 is 6/10. 6/10 is 0.6 meter. 0.6 मीटर ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन. तो ऐसा आप इसको सॉल्व करते हो. तो रोटेशनल डायनामिक्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगने वाले हैं, एंड यू आर सपोज्ड टू नो दिस कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two spheres A and B of masses m1 and m2 respectively collide. A is at rest initially and B is moving with velocity v.
along x-axis. After collision, B has a velocity in direction perpendicular to original direction. Mass A moves after collision in the direction. देखो ऐसा है, आपके पास दो स्पीयर है ऑफ masses m1 and m2. Masses m1 and m2. Two spheres. Okay. m1 and m2. तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसको A स्पीयर बोलता हूँ, मास m1 बोलता हूँ, इसको B बोलता हूँ, मास m2 बोलता हूँ. इनिशियली मास A जो है वो रेस्ट पे है और B जो है वो मूव हो रहा है along x-axis with velocity v. So initial velocity of B is this. All right, this is initial velocity v along x direction. After collision, B has a velocity in a direction perpendicular to original. Initially B x direction में जा रहा था, collision के बाद B जाएगा y direction में according to the question. We'll go here, right? Mass A moves after collision in the direction. मैं मान लेता हूं कि ये जो mass A है ये somewhere here it is going now. तो इनिशियली तो रेस्ट पे था, लेकिन कोलिजन के बाद इट इज गोइंग समवेयर ओवर हियर इन दिस डायरेक्शन, और ये एक्स एक्सिस है. तो मान लेते हैं कि मास ए जो है वो थीटा एंगल पे जा रहा है. ओके, थीटा एंगल पे जा रहा है आफ्टर कोलिजन विद सम वेलोसिटी v डैश. करेक्ट, गुड, इतना आपको पता होना चाहिए. ओके, और ये आपका जो मास B है, मतलब बॉल B है विथ मास m2, इट इज गोइंग ओवर हियर. ओके, इसका मास m1 है. दिस इज व्हाट यू शुड नो. आपको पूछा है व्हाट इज दिस डायरेक्शन थीटा. व्हाट इज डायरेक्शन थीटा, कैसे फाइंड करोगे? बहुत इजी है. व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, यू आर सपोज्ड टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लेकिन इसमें क्या जाता है ना, इफ यू रिमेंबर थियरी, आप यहां पे डायरेक्शन वाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करो. मतलब यू शुड से लेट्स अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एंड देन अलोंग वाई. सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन of momentum first along x direction. तो क्या हो रहा है, initial momentum equal to final momentum along x. What is initial momentum along x? It is just m2v. क्योंकि ए ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे था ना, तो आप क्या लिखते हो, नॉर्मली क्या लिखते हो, m1v1 प्लस m2v2. ऑफ कोर्स एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, राइट? लेकिन ए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, मतलब सिर्फ आप लिखोगे m2v. करेक्ट, ओके. ये हो गया कोलिजन से पहले. कोलिजन के बाद v डैश जो ये वेलोसिटी है किसका है, इट इज वेलोसिटी ऑफ A. इसका कंपोनेंट देख लो यहाँ पे along x direction. This component is v dash cos theta along x direction. Okay, correct, right? So if you are getting confused, मैं डिटेल लिख देता हूँ यहाँ पे, it's better for you. m1 v1 x plus m2 v2 x इक्वल टू, ये इनिशियल की बात है तो इनिशियल u1 से डिनोट कर देते हैं, डजंट मैटर. इनिशियल फाइनल क्या है, m1 v1 x प्लस m2 v2 x. लेकिन पहला ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे ही था 0, m2 इट वाज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी एज
v only along x equal to m1 v1x, कितना है v1x, दिस इज v डैश cos थीटा, जीरो, जीरो क्यों, कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट बी y डायरेक्शन में जा रहा है, ओके y डायरेक्शन में जा रहा है, गुड गुड। सो ये आपके पास आ गया m2v इक्वल टू m1v डैश cos थीटा, आ गया इक्वेशन नंबर 1, या फिर इसको cos थीटा बना देते हैं, फिर इक्वेशन 1 बोलते हैं। cos थीटा इज m2v अपॉन m1v डैश, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब आप along y एक्सिस अप्लाई कर दो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। So if you apply conservation of momentum along y, you will have, so applying conservation of momentum along y, along y axis, m1 u1y plus m2 u2y equal to m1 v1y plus m2 v2y। इनिशियली ऑब्जेक्ट ए रेस्ट पे था, ऑब्जेक्ट बी अलोंग एक्स था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी तो y के डायरेक्शन में था ही नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ही अलोंग x मूव कर रहा है, तो कैसे आएगा m1 v1y, m1 v1y। What is y component of velocity of mass 1? That is this one, वो आएगा आपका ये b dash sin theta, so that is b dash sin theta plus m2। अभी ये प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा कि how do you find out this thing, what is y component, I mean what is the final velocity। तो ये एक इशू है, how do you find out final velocity, कैसे फाइंड करोगे। okay, so this is something which you need to understand कि ये v/2 आएगा, क्यों v/2 आएगा। look at the question, two spheres A and B of mass m1 and m2 respectively collide, A is initially at rest, B is moving with velocity v along x, after collision B has a velocity in direction perpendicular to the original direction, the mass A moves after collision with, good, so you have to understand कि why this is v/2। अगर ये आपको समझ में आ गया तो कुछ तो थोड़ा सा असाइनमेंट देना भी चाहिए, you should basically think little bit why it should be v/2, क्योंकि वो समझेगा तो फिर इजी है काम। so you need to work out why this is v/2, okay, good। so if you know this, you have to solve, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0 equal to, इसको सॉल्व कर लो, you will have m1 v dash sin theta equal to minus m2 v/2, okay, so sin theta will be minus m2 v upon 2 m1 v dash, right। then along y axis देख रहे हैं हम लोग ये सब, okay, then you have equation 2, you have cos theta by equation 1 and sin theta from equation 2, तो cos by sin, और आपको याद है ये था m2v upon m1v dash, m2v upon m1v dash upon minus m2v upon 2 m1v dash, तो जो कैंसिल करो ये और ये, तो you will have, ये साइन ऊपर लिखना था मुझे, this 2 will just be in the numerator, तो ये जो है वो यहाँ पे होगा
और नेगेटिव भी जो है वो यहाँ पे होगा, दैट्स इट। You will have tan theta equal to minus half. So you will have theta is equal to tan inverse of minus half. है क्या? ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब प्रॉब्लम ऐसा है सब इन सम बुक्स इट्स नॉट गिवन द करेक्ट वे, तो आंसर नंबर डी आएगा अपना। तो क्या किया हमने सिर्फ x और y कंपोनेंट में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया है, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव। ओके, तो ऐसा सॉल्व करना है आपको। सिर्फ ये v/2 कैसे आया, थिंक अबाउट इट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, इजी है, बहुत इजी है, जस्ट थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, a body of mass 1 kg is thrown upwards with velocity 20 meter per second. It momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy is lost due to friction? Good. हमारे पास एक बॉल है, बॉडी है, जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है इसको ऊपर। ये एट अ हाइट ऑफ 18 मीटर आने के बाद रुक जाता है। सो हाइट ऑफ 18 मीटर आने के बाद रुक जाता है ये h। ओके, 1 kg इसका मास है। व्हाट इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एयर फ्रिक्शन? तो अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होता, मान लो इफ फ्रिक्शन वाज एब्सेंट, मतलब एयर ही नहीं है मान लो, तो फ्रिक्शन नहीं है, तो जितना भी इसका काइनेटिक एनर्जी है वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता। सो काइनेटिक एनर्जी लॉस इन के इज इक्वल टू गेन इन पी, है ना, दैट इज हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू mg h डैश। ओके, तो हाफ m, व्हाट इज m1, व्हाट इज u 20 स्क्वायर इज 400। वैसे mm कैंसिल ही हो गया तो ठीक ही है, अंडर रूट ऑफ 2gh ही कर लो आप। फिर यहाँ से h dash is u square by 2g. This is 20 square is 400. This is 400 by 2 into 10. तो 400 by 20 is 20, है ना, करेक्ट। तो ये 20 आ जाएगा आपका। तो अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होता तो 20 मीटर पे जाना चाहिए था, 18 मीटर तक गया है। तो कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है ये आपको पूछा है ना, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो कैसे फाइंड करेंगे, हाउ डू यू फाइंड दिस आउट? लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन minus potential energy in presence of friction. In absence of friction is mg h dash, क्योंकि 20 मीटर तक जाएगा, and in presence of friction is mg h जो 18 मीटर है। तो mg h dash minus h, m is 1, g is 10, h dash is 20, this is 18। तो 20 minus 18 is 2 into 10 is 20 joule. 20 joule is loss of energy due to friction. तो बहुत सिंपल और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होता तो 20 मीटर तक जाता, लेकिन क्या बोला है, 18 मीटर तक गया है वो, राइट, करेक्ट। तो व्हाट इज लॉस इन एनर्जी? potential energy in absence of friction minus potential energy in presence of friction. In absence of friction, it will be mg h dash because the object will go up to height h dash. In presence of friction, it will cover less distance because of the friction. So this is how you are supposed to solve this particular question. ऐसा solve करना है इसको. Okay. So this is how you can solve. 14th. An explosion blows a rock into 3 parts. अभी एक काम करते हैं, I will give this as an assignment क्योंकि हमने ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन किए हैं, वेक्टर्स में भी किए हैं, तो इसलिए it's not good that we spend time on this now.
A shell of mass 200 gram is ejected from a gun of mass 4 kg by an explosion that generates 1.05 kilojoule of energy. Okay, the initial velocity of the shell is, तो ऐसा है, आपको पता है कि यहाँ पे आप conservation of momentum यूज करते हो. Initially shell मतलब बुलेट, बुलेट है ना, शेल यू सी, अभी गन में बुलेट होता है ना, तो के अंदर जो होता है उसको शेल भी बोलते हैं, तो शेल. तो इनिशियल मोमेंटम इज मोमेंटम ऑफ दैट गन प्लस मोमेंटम ऑफ शेल, इनिशियल इनिशियल फाइनल फाइनल. इनिशियल तो जीरो, क्योंकि जब मैंने फायर ही नहीं किया तो मोशन नहीं है, मोशन नहीं है तो मोमेंटम नहीं है, तो वो जीरो. ओके, देन फाइनल मोमेंटम ऑफ गन is mass of gun v of gun plus shell का mass of shell velocity of shell, right? Okay, so what you can do here is, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे, यहाँ से बेसिकली you will find what is velocity of gun, वो पता ही होता है, ये डायरेक्टली आता है. दिस इज बेसिकली माइनस msvs बाय mg, ये वो पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आता है. नाउ जब हमने शेल को फायर किया तो 1.05 किलो जूल का एनर्जी जनरेट हुआ. कहाँ गया ये एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. कौन कौन ले गया? एक तो बुलेट मतलब शेल जाएगा, और ये जो गन है वो रिकॉइल होगा, पीछे आता है ना गन. तो ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी appears in the form of kinetic energy. So total kinetic energy is, कैसे लिखोगे? kinetic energy total is kinetic energy of shell plus kinetic energy of gun, that is half ms vs square plus half mg vg square. Okay, this is equal to half ms vs square plus half mg vg is this, इसका स्क्वायर मतलब ms vs by mg का स्क्वायर. नेगेटिव साइन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, सो डजंट मैटर रियली. तो हाफ ms vs स्क्वायर प्लस हाफ mg ms स्क्वायर vs स्क्वायर अपॉन mg स्क्वायर, एक और एक कैंसिल. हाफ ms vs स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 1 प्लस क्या बचा? एक ms बचा, एक mg बचा, करेक्ट, राइट. एंड दिस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, आपको दिया है कितना? 1.05 किलो जूल. इतना रिलीज हुआ, 1.05 किलो जूल का एनर्जी रिलीज हुआ है, जनरेट हुआ है मतलब. तो राइट, गुड. अब सॉल्व करो, हो गया. आपके पास मास ऑफ शेल है 200 ग्राम, मास ऑफ गन है यस कितना? 4 kg है ना. यू हैव दिस, सो जस्ट सॉल्व दिस, यू विल फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल. यहाँ से वीएस मिल जाएगा आपको. तो करना क्या है, ये वैल्यू डालना है, दैट्स इट. सॉल्व फॉर वीएस. तो कैलकुलेशंस आई विल लीव इट ऑन टू यू, क्योंकि कैलकुलेशन इज अ सिंपल थिंग, बट यू शुड गेट ऑप्शन नंबर सी 100. तो ये सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर. तो क्या करना होता है ऐसे केसेस में? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. गन का वेलोसिटी आप काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में डालोगे. व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी? गन का प्लस शेल का, क्योंकि जब शेल फायर होता है तो गन पीछे आता है. ओके. 16th, the potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeters is u. If the spring is stretched by 8 centimeters, the potential energy stored in it is.
आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब u2 by u1 is x2 by x1 का स्क्वायर, मतलब u2 is equal to x2, what is x2, 8 centimeter, x1 is 2 centimeter square into u1, u1 is u, तो 1 जा 4 जा 4 square is 16 times of u, 16 times of u, option number D, simple question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, a particle of mass m1 is moving with velocity v1 and another particle of mass m2 is moving with velocity v2. Both of them have same momentum but different kinetic energies, e1 and e2 respectively. If m1 is greater than m2, then, तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग एंड सिंपल है. कैसे? यू नो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, ऑफ कोर्स यू शुड नो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी K is equal to half mv square. लेकिन मोमेंटम के बारे में कुछ बोला है तो मोमेंटम के टर्म में लिखो हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m, मतलब काइनेटिक एनर्जी K is p स्क्वायर बाय ट्वाइस m. सिंपल है. तो मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है तो K is inversely proportional to m since momentum is constant. ओके, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट दी है, E1 और E2 बोला है. ओके, तो मैं इसको रेशियो ले लूंगा. आई विल से K1 by K2 is equal to M2 by M1. लेकिन काइनेटिक एनर्जी को E से डिनोट किया है तो मैंने यहाँ पे ये K हटा देते हैं हम लोग. Why do I need to write down K if they're saying E? E E1 by E2, but as they say M1 is greater than M2, which means M2 by M1 is less than 1, therefore E1 by E2 which is M2 by M1 which is less than 1, मतलब आपको मिल जाएगा. of course you should understand this, it is M2 by M1, this is less than 1, so E1 is less than E2, E1 is less than A2, ऑप्शन नंबर ए. ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. करेक्ट. अभी ये क्वेश्चन जो है ये हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम टाइप का मैक्सिमम कंपैरिजन. तो मैं क्या करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ लेकिन फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने किया है ऑलरेडी. ये था मैक्सिमम कंपैरिजन का फॉर्मूला. Here you go, right? ये मैक्सिमम कंप्रेशन का फॉर्मूला कैसे बनता है आपको पता है. सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक गलती होती है. यू हैव टू रीड दिस. दिस इज सॉलिड सिलेंडर, दिस इज सॉलिड सिलेंडर. और हमारे पास जो क्वेश्चन अभी दिया है यहाँ पे, a mass m of 0.5 kg moving with a speed of 1.5 on a horizontal smooth surface. स्मूथ सरफेस नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि रोलिंग नहीं होगा ना. स्मूथ सरफेस मतलब फ्रिक्शन नहीं मतलब रोलिंग मोशन नहीं, ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन. तो ठीक है, फिर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. बस यही कर सकते हो. दैट इज हाफ mv स्क्वायर, दिस इज हाफ kx स्क्वायर. तो mv स्क्वायर इक्वल टू kx स्क्वायर. तो देखो अच्छा हो गया कि हमने कंपेयर कर लिया, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते. नहीं कर सकते, वो रोलिंग मोशन है और वो रोलिंग मोशन में बॉडी कौन से टाइप का है ये स्पेसिफाई करना पड़ता है. सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, क्या है. तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई के. तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mv स्क्वायर बाई के. मास इज 0.5, velocity is 15, 1.5, ठीक है. 15 square to 25, 1.5 और 2.25 अपॉन k 50, 50. तो 1 and 100 of course. ओके, तो कर लो इसको सॉल्व, सिंपल है. दिस इज, मैं अलग तरीके से कैलकुलेट करूंगा. आई विल से अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 2.25, ये दोनों के पॉइंट हटा दिए, 10 पावर -3 अपॉन 5, 51 10 ये ऊपर जाएगा
तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 225 इंटू 10 पावर -4, मतलब ऑब्वियसली 225 का स्क्वायर रूट पता होना चाहिए आपको, राइट। तो देख लो कहीं पे मेरी अगर गलती हुई होगी तो यू कैन जस्ट रेक्टिफाई इट। एनीवेज 225 का रूट इज 15 इंटू 10 पावर -2, 10 पावर -4 का रूट 10 पावर -2, 0.15 मीटर है क्या? ऑप्शन नंबर ए। गुड गुड। 19th क्वेश्चन, a stationary particle explodes into two particles of masses m1 and m2 which move in opposite direction with velocity v1 and v2. The ratio of their kinetic energy is. ये simple question है, you see it's very simple. Q, ratio of kinetic energy E1 by E2 is half m1 v1 square upon half m2 v2 square. Correct? Right. Now from conservation of momentum, इनिशियली तो एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम 0, एक्सप्लोजन के बाद m1 v1 माइनस m2 v2। क्यों लिखा ऐसा? मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव आएगा ना, एक का v1 तो दूसरे का -v2 आएगा। दिस इज व्हाई। सो आपको मिलेगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2, मतलब आपको मिलेगा m1 बाय m2 is equal to v2 by v1। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट करो, ऑफ कोर्स हाफ हाफ कैंसिल होगा, तो आपको मिल जाएगा m1 by m2 is v2 by v1, और यहाँ पे v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर था ही, एक 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 कैंसल, तो v1 by v2 आपके पास आएगा, है ना। और m1 m2 भी, मैंने m1 m2 व्हाट हैपेंस हियर, एनर्जीज का रेशियो पूछा है आपको, ओके। हाँ, इन टर्म्स ऑफ मास ऑलरेडी, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास E1 by E2 है m1 by m2 और v1 by v2 का स्क्वायर, तो v1 by v2 का स्क्वायर, v1 by v2 इज m2 by m1 इसका स्क्वायर। कुछ नहीं, मैंने इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखा था, उन्होंने इन टर्म्स ऑफ मास दिया, दैट्स इट, m2 by m1 खत्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। So just they can ask you in terms of velocities or they can ask you in terms of masses. Okay, so this is what you are supposed to do. Now projectile motion से connected question है, a particle is projected making an angle of 45, तो theta 45 दिया है आपको, with the horizontal having kinetic energy as k. Kinetic energy at highest point will be, आपको पता है during projectile motion, during projectile motion, so you have projectile motion, good, highest point पे projectile का y component 0 होता है velocity का, x component तो कभी change ही नहीं होता है क्या नहीं होता है, तो u by √2 ऐसा होता है, राइट। आपको बोला है a projectile is projected making an angle 45 with horizontal having kinetic energy k, the kinetic energy at highest point is, देखो जब प्रोजेक्ट किया गया था इनिशियली काइनेटिक एनर्जी के रहा होगा हाफ mu स्क्वायर, u is initial velocity at highest point you will have kinetic energy k dash as half m ux square, क्योंकि y कंपोनेंट तो होता ही नहीं वहां पे, half m ux is u by √2 का स्क्वायर, मतलब हाफ m u स्क्वायर by 2, this mu square by 2 is k, तो k dash is k by 2,
ऑप्शन नंबर बी, खत्म क्वेश्चन। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 21, a force acts on a 3 gram particle in such a way that position of the particle as a function of time. Position of a particle as a function of time 3t minus 4t square plus t cube, where x is in meter, t is in second. The work done during the first 4 seconds. What is work done? Force into displacement. Correct? Force निकालो. What is force? Mass into acceleration. तो acceleration निकालो. What is acceleration? Rate of change of velocity. What is velocity? Rate of change of displacement. मतलब पहले मुझे v निकालना पड़ेगा सबसे पहले। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, 3t का डेरिवेटिव 3, 4t स्क्वायर का 8t, इसका 3t स्क्वायर। फिर एक्सेलेरेशन निकालोगे dv बाई dt माइनस 8 प्लस 6t, तो 6t माइनस 8। एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4, फर्स्ट 4 सेकेंड्स बोला है ना आपको, तो 6 into 4 minus 8, 24 minus 8 is 16. Similarly, x at t equal to 4, that is 3 into 4 minus 4 into 4 square plus 4 cube plus 4 cube. Para, this is 16 into 4 is 64. 64, 4 cube is again 64. Cancel, cancel. 12. X की value 12. What is work done? Is force into displacement. What is force? Mass into acceleration into displacement. What is mass? 3 gram, मतलब 3 into 10 power minus 3 kilogram. Acceleration 16 और x is 12. 16 12s are 160 plus 32, 192 into 3, 192 into 3, 200 into 3, 600, 600 में से 600 में से 24 माइनस 600 में से 24 माइनस 576 into 10 power minus 3 जूल, 576 मिली जूल है क्या? ऑप्शन नंबर सी। गुड, सिंपल सिंपल, good good. Okay, so what I'll do is I'll take just one more question. तो ये मैं दे रहा हूँ एज अ असाइनमेंट, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे करते हो, तो आपको पता है अब। 23rd, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F is 7 minus 2x plus 3x square न्यूटन। देखो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है क्या? यस, x पे डिपेंड कर रहा है। Acts on a body of mass 2 kilogram and displaces it from 0 to 5 meter. हमारे पास एक फोर्स है which is position dependent। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg। ये फोर्स F इस पे लगने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक। You have this as basically 5 meter if I'm not wrong. Yes. ये 0, ये 5। work done is integration f dx 0 to 5. F is 7 minus 2x plus 3x square dx 0 to 5. This is 7 constant derivative of x minus 2 constant derivative of x dx plus 3 constant derivative of x square dx, all between 0 to 5. तो यह आ जाएगा 7x minus 2x square by 2, 2 cancel, plus 3x cube by 3, 3 cancel, 0 to 5. तो यह आ जाएगा आपके पास 7x minus x square plus x cube, लिमिट्स डाल दो, अपर लिमिट डाल दोगे तो 7 into 5 minus 5 square plus 5 cube, और फिर लोअर लिमिट तो 0 0 0 ही आएगा, तो डजंट मैटर। 35 में से 25 गए, उसमें 125 ऐड हो गए, 135। ऑप्शन नंबर ए। डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असाइनमेंट।
And last question, coefficient of restitution. What is restitution? आपको पता है बिफोर कोलिजन, मान लो ये है U1 और ये है U2, मान लो U1 इज ग्रेटर देन U2, क्यों? अगर जो पीछे, अभी इमेजिन करो आपका दोस्त आपसे आगे चल रहा है मतलब वेलोसिटी है, आप उसके पीछे हो, आपको जाके धक्का मारना है, तो आपका स्पीड ज्यादा होना चाहिए ऑफ कोर्स, नहीं तो कोलिजन कैसे होगा? तो दिस इज द कंडीशन, U1 शुड बी ग्रेटर देन U2, मतलब U1 माइनस U2 इसको बोलते हो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, आप 15 की स्पीड से जा रहे हो, तो 15 माइनस 10, 5 किलोमीटर पर आवर इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यू आर अप्रोचिंग योर फ्रेंड। तो बॉल 1 इज अप्रोचिंग बॉल 2, U1 माइनस U2, धक्का मारने के बाद, कोलिजन के बाद, दिस इज V2, दिस इज V1। अब मान लो V2 इज ग्रेटर देन V1, है ना? अब सेकेंड ऑब्जेक्ट फास्ट जा रहा है, तो V2 माइनस V1 इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कोएफिशिएंट ऑफ restitution is velocity of separation to that of approach, है ना? Velocity of separation divided by velocity of approach. This is coefficient of restitution denoted by E. So V2 minus V1 upon U1 minus U2. But elastic collision में, perfectly elastic collision में, for perfectly elastic collision, you have velocity of separation and approach equal. तो perfectly elastic collision में ये equal होता है, मतलब E की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट? सिंपल है, E की वैल्यू 1, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, आपको याद ही रखना है डायरेक्टली। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज 1, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है, 0 से 1 मतलब नेगेटिव और इंफिनिटी तो हो ही नहीं सकते। 0 कब आती है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मड का बॉल है, मिट्टी का, मैंने दीवार पे दे मारा, क्या होगा? स्टिक। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलिजन के बाद स्टिक होके साथ में जाते हैं, उस केस में 0 आती है वैल्यू। क्यों? क्योंकि फिर V2 और V1 इक्वली हो गए ना। इनिशियल वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट का U1, दूसरे का U2, कोलिजन के बाद दोनों साथ में जा रहे हैं, तो सेपरेशन हो ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है, तो E 0 है। और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0 है, परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1 है, इन बिटवीन 0 to 1 है। डन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, we'll stop here and we'll continue with next chapter in the next section.